Thank you so much, ladies and gentlemen, for coming here. It's all looking very formal and very regal because it is a very regal location. But I've always felt that we've never had an opportunity to directly interact with the media, talk to some of the people. And so I asked Chintu if we could get together in one location, get everybody here together, and just casually sitting in a drawing room and talking. Talk about cinema, talk about our film, talk about other things that we've done together, many other films. So my first question really is that how many people in the audience above the age of 65? 1, 2, 3, 4. How many above 76? Nice to know that. Thank you. तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हम लोग बैठे हैं 65 साल के और 76 उम्र के, ये तकरीबन 4 या 5 दशक से हम लोग फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। और इसे मैं अपना और मैं उम्मीद करता हूँ कि चिंटू जी आपको भी ये बड़ा सौभाग्य मानते होंगे आप कि हमें we've had an opportunity to work through 4 or 5 generations or 5 decades of Indian cinema and still have an opportunity to be together and talk to you today about our upcoming film and some of the films that we've done in the past as well. So, Chintu, I'll just start with you and say, it's very difficult to ask you, what prompted you to join movies, because you come from the most important family and the most, their dedication, their history of cinema is, well, world-renowned. What was it that prompted you to come into films? Well, first of all, I've been told, Mujib, that when I was little, or perhaps before that, there was a shot I had to give for Shri 420. Right. And my elder brother and my elder sister were also in the shot. And the shot was just walking by, but in rain. और जब वो शॉट देता था मैं और वो बारिश रिहर्सल होती तो मैं रोने लगता था। तो रोने लगता तो शॉट कभी होता नहीं था। तो फिल्म श्री 420 का वो दृश्य था और फिर वहाँ नरगिस जी ने मुझे उस वक्त मुझे ब्राइब में कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी अगर तुम अपने आँख खोल के रखोगे और रोओगे नहीं शॉट में। So I took up that bribe and I kept my eyes wide open only for the chocolate and I gave that shot. So that was my first shot ever that I did in my life in films. कि एक दिन हम खाना खा रहे थे और मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से पूछा कि वो मेरा नाम जोकर बना रहे थे। तो उन्होंने मम्मी से कहा कि कृष्णा मैं चाहता हूँ कि मैं चिंटू को मेरा नाम जोकर में अपना बचपना का पार्ट दूँ। तो मेरा क्लोज अप 100 कहा कि भाई मुझसे कहा जा रहा है कि मैं फिल्म में काम करूँगा। तो मैंने वहाँ किसी के सामने रिएक्शन तो नहीं दिया, मैं अपना खाना खाते रहा। तो मम्मी और पापा के बीच में बात हो रही थी कि देखिए वो उसके स्कूल में should not be hindering him in his school and his classes। वो दूसरी बात है कि it hardly made any difference when I was in school। But we solved it out, and in that due course I finished my meal, I kept away my plate, I went back to my room, and on my study table I opened a drawer and took out a foolscap sheet, and there and then I started practicing my autograph। मेरे दादाजी ने यहाँ बहुत से प्लेस किए हैं और आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। I checked this with my mother in the evening before I disclose this to you, that my grandfather Prithviraj Kapoor became grandfather right here on the stage, and whilst doing his play Diwar, he came out of his character and he said, I am very happy to tell you that I've become a grandfather. My son Raj Kapoor has given birth to a son। Yeah। This is the place। तो यहाँ पर आज बैठ करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोगों से बातचीत करके। ये जो 4 दशक हैं चिंटू, how do you feel about it? I mean, how do you feel
these 44 years. We've started working. Chintu was telling me 44 years back. 44 years we started working. Our first film was Kabhi Kabhi together. Yeah, but 44 years, and I just thought that maybe we'll just share some notes about what it was like working in the 70s right now up to 2018. मेरे ख्याल से सर ये बोलना बहुत ज़रूरी है ऑडियंसेस को कि उस वक्त 70s में हमारी ऑडियंसेस जो थी वेरी फॉरगिविंग ऑडियंस थी, एक इनोसेंट ऑडियंस थी, वेरी फॉरगिविंग ऑडियंस। देखो हम सब एक्टर्स जो थे, हम सब जितने तमाम एक्टर्स जो थे, कभी भी किसी वक्त उनके पास मिनिमम 3 पिक्चरें तो डेफिनेटली लॉस्ट एंड फाउंड में बेस्ड होती थी और बाकी होती थी रिच बॉय एंड पुअर गर्ल या पुअर बॉय एंड रिच गर्ल। देयर वाज नो अदर थीम। ये जब ज़्यादा पिक्चरें होने लगी, और इसके एक दोषी मैं हमारे प्रिय मित्र शशि जी को भी कहूँगा, उनके कम से कम 20-25 फिल्में एक साथ चलती थी और वो हर जगह जा करके 2-2 घंटा इधर 2-2 घंटा उधर, फिर किसी और स्टूडियो में। मेरे पिता फिर उनको टैक्सी बुलाते थे। क्या बात कर रहे हैं? एंड व्हेन वी आर गिविंग अ शॉट आफ्टर वी हैव रिहर्स्ड, द आर्टिस्ट एंड फॉर पीपल लाइक मी हु आर न्यू कमर्स, इट वाज फ्राइटनिंग because we had to get it right in the first take. You never had an opportunity for a second take, क्योंकि उसमें फिल्म जो है वो ज़ाया होगी और डायरेक्टर जो था वो आपको कभी अपॉर्चुनिटी देता नहीं था, और अगर आपने 1-2 बार गलती कर दी तो शायद आपको फिल्म से निकाल देंगे। तो इस डर के मारे, नहीं सीरियसली, इस डर के मारे हम लोग ये प्रिपेयर करते थे कि ये एक ही टेक में करना है। और वो एक आदत सी बन गई है चिंटू कि जब हम लोग काम करते थे, अभी भी the moment we start our dialogue and we feel कि यार शायद हम भूल रहे हैं, it's going wrong, कट ताकि वो फिल्म बच जाए। फिर साहब ऐसा हुआ कि आजकल की मॉडर्न जनरेशन के साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला। नाम नहीं लूँगा किसके साथ, लेकिन एक फिल्म में काम कर रहा था, वो ऐसे ही हुआ तो मैं डायलॉग बोलना शुरू किया, मुझे लगा कि मैं डायलॉग भूल रहा हूँ, कट। तो वो जो नौजवान डायरेक्टर था वो मेरे पास आया, मिस्टर बच्चन कैन आई स्पीक टू यू फॉर 2 minutes? आई सेड यस। और अलग ले गया, सर यू विल नॉट से कट, आई विल से कट। सो ही इज राइट, क्योंकि सर कोई रोक नहीं है ना, अभी डिजिटल पे कितने भी रीटेक दे दीजिए, कितने भी कुछ करते रहिए, देयर इज नो डेंजर ऑफ टाइम। So he is right. In the shooting of our film 102, many times we had this discussion, and we said, "Yaar, why are you retaking this shot?" But हमारे डायरेक्टर साहब हैं कि चले गए, वो हमेशा ये कहते थे, नहीं यार एक और कर लेते हैं। और एक बड़ा कॉमन एक्सक्यूज हो गया देखिए डायरेक्टर्स का, क्योंकि हम लोग थोड़े वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं तो वो थोड़ा सा लिहाज करते हैं हम पर, तो सर एक और ले लेते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि वाई ही इज टेकिंग इट, बिकॉज मे बी ही वांट्स अस टू इम्प्रूव। बट आफ्टर 3 or 4 व्हेन इट डजंट हैपन, इट्स अ नॉर्मल एक्सक्यूज चिंटू। आई एम श्योर दैट द कैमरा डिपार्टमेंट, उसका फोकस कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई लाइटिंग ख़राब हो गई, वो हमको नहीं बताएंगे कि लाइटिंग ख़राब हो गई या फोकस ख़राब हो गया। वो कहेंगे नहीं सर वो थोड़ा आप एक लाइन थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, तो उसको थोड़ा इमोशन और बढ़ा देते हैं उसमें। बट इट्स एक्चुअली देयर फॉल्ट। डू यू एग्री विद दैट? हमारे साथ क्या होता था कि जब हम नए थे, मैं फिल्म बॉबी की बात कर रहा हूँ, तो हम गलतियाँ करते थे, हमको आते ही कुछ नहीं था, हमें बताया जाता था। तो जब रीटेक पे रीटेक होते थे तो डायरेक्टर हु वाज माय फादर, देन ही इज़ नो फादर, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑन द सेट्स, नो डैडी, पापा, बाबूजी, मामा, एनीथिंग, नथिंग, इट्स जस्ट साहब एंड व्हाट द शॉट इज। सो ही हैड अ कोड वर्ड. His code word was, he used to ask his chief assistant director how was the shot, and if he wanted a retake, even after that, then he would ask the sound guy. In those days we used to have sync sound. He used to ask him, his audiographer was Alauddin Khan. So he used to say, Khan Saab, shot kaisa hai? Those were things that, these are code words saying कि मुझे एक और चाहिए तो तुम बोलो एक और चाहिए. Why? I'll tell you why. Because what happens is, invariably, the actor becomes nervous when you start forgetting lines and you do not know, and you don't do exactly what your instructions are. So you could become nervous, and I've seen very senior actors, going through that phase, because they, if you're asking them one after the other, it becomes that sort.
So he used to say, oh God, and he used to take a shot and said, that is very good, Rahul, very good. Khan Sahab, shot kaisa hai? So that's the code. जी एक और चाहिए मेरा साउंड ठीक है अरे यार दिस sorry your shot was damn good but I want the same thing again and then he would pass the instruction देखो वो जो हाथ जो था ना तुमने ऐसे कवर किया तो वो मत करो और ऐसा करो this is why the retake is done so everybody had his own way to work so not to make the actor nervous or conscious of the fact that So ऐसे सर मैं सर एटलीस्ट यू वर फॉर्चुनेट कि आपको रीटेक मिलता था हमारे सेट पे तो ऋषिदा बोलते थे अगर रीटेक चाहिए तो उसकी यू हैव टू पे फॉर इट बिकॉज यू हैव टू सेव द फिल्म सो यूज्ड टू जस्ट टेक वन शॉट एंड किफ़ायती जो होती थी ना उस ज़माने में ख़ास तौर से ऋषिदा की फिल्मों में तो ऋषिदा सुबह हम लोग सेट पे जाएं ऋषिदा पूछें कि क्या है सीन बस रेडी हो जाओ ये छोटा इधर से आना है उधर का He never used to tell us anything. He said, वहाँ खड़े हो जाओ डायलॉग बोलो ऋषिदा वो ड्रेस क्या होगा यही जो तुम पहनो यही ठीक है So every time we went for the shooting to ऋषिदा ऐसे ऋषिदा वो कपड़ा क्या पहनना है यही है ठीक है तुम्हारा जो पहन के है So in order to look good in the film we started wearing what we were going to come to the studio with knowing that ऋषिदा is going to say कि हाँ यही पहन के आ जाओ तो बहुत सी हमारी ऋषिदा की फिल्मों में जो हमारे कपड़े आपने देखे हैं वो हमारे अपने हैं He is such a delightful actor to work with. He is a pleasure to work with. अच्छा ये इसलिए यहाँ नहीं रखा है कि आप हमारी तारीफ करें और मैं आपकी तारीफ करूं इनको बता तो दूं मैं what it's like to work with you and I must tell you a little later that what he does and I've learned a lot from him what he does within how I've learned a lot what he does with his craft which I will share with him. I don't have any craft. No, well you have a craft of how you do your work. You're a thespian. How you do your work and how you get into your role is what I discovered about you in this film. After 27 years and done 5 films. I got to know it now. So it's my fault. So आप बताइए सर आप जो कह रहे थे मैं बाद में बताऊंगा ये We did कभी कभी together और कभी कभी जो थी वो यश जी के साथ मैंने दीवार शुरू कर दी थी फिल्म और दीवार ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थी और दीवार का जो रूपरेखा थी जो कहानी थी उसका जो मूड था जो कैरेक्टर था वो एकदम विपरीत था कभी कभी के साथ और ऑलमोस्ट विद इन 2 days of finishing the दीवार shoot we were in Kashmir shooting for कभी कभी where there was romance and flowers and elegant clothing and Kashmir and everything बड़ा अजीब सा लगा सा था उस समय but this was the craft of Yash Chopra. He was able to switch from one to the other and always but even in the film like Diwar 1 or 2 moments when Yash ji used to have an opportunity बड़ा serious scene चल रहा है जैसे कि परवीन भाभी जी का और मेरा कोई सीन चल रहा है जहाँ मेरा बाप जो था वो चोर था ये था और जैसे ही वो सीन ख़त्म होता था he would zoom to a bouquet of flowers if you notice in दीवार कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा वो तो वो आदत से मजबूर थे उनको फूल पौधे मिठास शायरी ये सब बहुत पसंद था but it was a wonderful experience we spent many days in Srinagar and Kashmir and I was working with Chintu ji for the first time or I would like to before you proceed I'd like to tell the audience how I met you and where I met you the first time जी जी मैं बताऊं मैं भी जानना चाहूँगा आप शायद भूल रहे हैं मेरी दोस्ती बहुत थी इंदिरा राज आनंद साहब के बेटों के साथ और इंदिरा राज आनंद राइटर थे उनकी बड़ी दोस्ती थी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से द राइटर फेमस राइटर ये उस वक्त आई थिंक ही वाज ऑडिशनिंग फॉर द फिल्म साथ हिंदुस्तानी तो आई टू कम टू टेनू आनंद एंड बिट्टू आनंद यू हैव तो मैं वो घर में आता था बिकॉज मेरे दोस्त थे मित्र थे तो हम बैठे रहते थे और मैंने एक दिन देखा अ यंग मैन हैंडसम मैन वेरी लैंकी चौखट मारे हुए ज़मीन पे बैठे हुए ये कोई अपना रिटन टेस्ट दे रहे थे अब्बास साहब के सामने ये कोई रिटन टेस्ट दे रहे थे आपको याद आएगा सोचिए and I don't know what it was happening and then there was a kind of a written test and that was the first time I actually saw you. Sorry, we were not introduced. Yes, ऐसा हुआ था सर बिल्कुल सही है सर क्योंकि अब्बास साहब चाह रहे थे कि बहुत से जो शब्द थे डायलॉग्स
वो मुझे मालूम नहीं थे। और मैं आज भी बता रहा हूँ सर कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने शब्द जायका सीखा। टेस्ट, जायका, खाने का जायका क्या होता है, वो शब्द उस दिन जिनकी और जब से इनके मुंह पे जायका लग गया है, he's left everybody bloody behind. That's why he's अमिताभ बच्चन। आरके स्टूडियोज याद है जी, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे बॉबी के लिए, आशा चंद्रा के जी, आरके स्टूडियो में राज जी का जो मेकअप रूम था, वो सबसे बड़ा बहुत ही ह्यूज रूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर होता था। और वहाँ पर चिंटू और जो इनके ट्रेनर थे, आशा चंद्रा, हाँ, वो डिम्पल और शशिकरण जी, yeah, I used to go and peep, and I used to see him training there for the film Bobby. But wonderful memories. And then we worked together in Amar Akbar Anthony. और अभी हमने एक यहाँ पर प्रोमो शूट किया आपके यहाँ आने से पहले, जैसा कि उमेश जी भी कह रहे थे और चिंटू भी कह रहे थे कि ये यही थिएटर है जहाँ पर अमर अकबर एंथनी चली थी 25 हफ्ते। और चिंटू ने बताया कि अमर अकबर एंथनी 25 हफ्ते चली 25 थिएटर में, मुंबई सिटी के एक शहर में 25 थिएटर 25 हफ्ते। क्या ज़माना था वो। आजकल तो 25 शो नहीं चलती है, 25 शो नहीं चलते हैं, 25 दिन नहीं चलते हैं। And not very many have this a journey like us, touch wood. We've been working since 44 years. And भगवान चाहे तो हम अगले 44 साल भी आगे काम करें। But you know, just to be with the mad genius that was Manmohan Desai, it was a huge joy. We used to sit and laugh sometimes off the set. यार मन तो क्या करवा रहा है यार, ये नहीं ठीक है, ये गलत है। 3 प्राणी यहाँ लेटे हैं, उनका खून जा रहा है एक बोतल में और बोतल से जा रहा है माताश्री को। ये मेडिकल हिस्ट्री नहीं हो सकती है। Is wrong. तुमको मालूम नहीं क्या होने वाला है, चुप। और 2-3 बड़ी मोटी गालियां देके हम लोग वहां लेट जाते थे। But you know, he was so right, because in the theater when that scene came, the theater used to explode. Unbelievable reactions. But he, you know, हम लोग अब जैसे वो कई ऐसे सीन्स थे, और उसकी कहानी देखिए। अमर अकबर एंथनी का क्लाइमैक्स का गाना है, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, तीनों गा रहे हैं और विलन को पता नहीं कि अमर अकबर एंथनी। Only Manmohan Desai could have pulled that off. एक और मैं आपको बताता हूँ, हमारी फिल्म अमर अकबर एंथनी में फिर से देखिएगा अगर आपको मौका मिले। साहब, एक फाइट सीन होता है विनोद खन्ना और मेरा, जहाँ वो मुझे पीटते हैं और पीटने के बाद मैं जेल में फेंका जाता हूँ या कहीं लॉकअप में। तो जहाँ जहाँ हमको लगा था चेहरे पे, तो उसने कहा यार मेकअप कर लो, कहाँ कहाँ चोट लगी। तो एक घाव यहाँ था और एक ज़रा आँख के नीचे था, तो वो थोड़ा मेकअप वाले ने लगा दिया। उसके बाद 4 सीन हुए हैं देवी और सज्जनों। ये मेकअप जो है घाव का, ये पूरे चेहरे पर घुमा है, कभी यहाँ लग गया है, कभी यहाँ पहुँच गया है, कभी यहाँ पहुँच गया। देयर इज़ नो एफर्ट टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी। देन वी वर्कड इन कूली टुगेदर एंड सर, कूली तो लैंडमार्क फिल्म आपके लिए है। सर वो मार्क हो गया, लेकिन You know that, can I tell them about that incident? हाँ, जिस दिन the fatal shot, that near about fatal shot, उस दिन हमें 2 बजे की शिफ्ट में हमें बुलाया था। तो अमित जी ने बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ चलना। फिर both sat in the car, we both went to the studio, and Amit ji was wearing shorts those days, sexy shorts and all that. I remember that very well. And वो उस दौर में बैंगलोर में every day used to wear shorts and come for the shoot. So that day the first shot was mine, whereas the second shot was being lit up, which was a longer shot, was a shot between Amit ji and Puneet. पहला ये शॉट किया था कि मुझे एक हाइट से जंप करना था गोगा कपूर पे, दैट वाज ऑल। तो द बॉक्सेस वर केप्ट देयर, उसके ऊपर तारपुलिन लगाया गया था। तारपुलिन इज एक्चुअली टू बॉक्स द बॉक्सेस, यू नो, टाइटली। तो
जंप करना था मैंने, तो ऊपर लाइटिंग वाइटिंग हो गई थी, हाई स्पीड में शॉट था, तो मैंने देखा कि अमित जी वहाँ आए और उन्होंने देखा बॉक्सेस पे और मुझे ऊपर देखा, तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड नथिंग बिकॉज द शॉट वाज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज ही गोइंग टू टेल मी। मुझे कहीं किसी असिस्टेंट ने कान में बोल दिया यार जंप नहीं करना, डाइव मारना। You know, so you at the spur of the moment you change your mind and you do something which you were instructed to do and you do something else. तो मैंने जो लीप ली, वो जो बैनिस्टर था, बैनिस्टर से I leapt towards Goga's hand and I went there and I landed on the box. In that process, I scratched my whole face because of the abrasion, the friction of the that tarpaulin. And we all got there. And that is where he came and told me कि अगर तुम्हें बहुत शौक है अपने stunts करने का, then you must know and how these the boxes are kept and everything. He really fired me. He said it was your fault. And I was going to tell you, then I said, अभी मैं क्या बीच में बोलूँ, shot ready है. And you were supposed to jump. Why did you dive? So he was right. I was wrong, and that happened. I had bruised my cheek and my forehead. Khair, the next shot was the shot between him and Puneet, and the shot started off and it was a fantastic take. I think it was the first take, okay. Everybody was clapping and I remember him, you know, he was trying to ape Pran Sahab. Jaise Pran Sahab, whenever you know, he did that, so Pran Sahab had a certain way of saying thank you. So he did the same thing because I was seeing that. And then all of a sudden everybody is happy and you see Amit ji has just disappeared. खैर हम जाके कहीं बैठे तो माई मेकअप मैन केम एंड टोल्ड मी कि सर अमित जी को कुछ लग गई मेरे ख्याल में, वो देखो गार्डन में लेटे हुए हैं। तो ऐसे लेटे हुए क्या, ऐसे लेटे हुए हैं। आई सॉ दे ये कुछ ही वाज समवेयर इन पेन, व्हाट आई डिडंट नो। By the time, you know, Prayagraj and Manmohan ji and everybody got to know, and we all went there. So he said that, you know, कुछ नहीं यार, जैसे लगा है जो भी है, जैसे हो गया, go on, carry on, carry on. Actually, that is how the shot actually took place. It was a perfect take. He didn't complain at that spur of the moment. He didn't say, he didn't give up the shot. He didn't, you know, stop the shot and say, painful. So that was the actor within him that did not give up. However, so much that he was in so much of pain. Sir, इसके पीछे एक और कहानी है. We had been working in Coolie for many days at a stretch. कई दिनों से बेंगलोर में सुबह 7-8 बजे से लेकर रात 10-11 बज जाते थे और यूनिट जो था वो थक गया था, बहुत मुश्किल में था और वो कह रहा था सर यू नो मंजी को बोलिए यार अभी एक साथ लगातार चले जा रहे हैं, यूनिट को ब्रेक नहीं मिला है, क्रू नीड्स अ ब्रेक दिस दैट। तो मैंने कहा यार अभी बोलना ज़रा अजीब लगेगा बट करते जाओ, काम देखते हैं। तो जो ये बता रहे हैं जब ये शॉट हुआ और मुझे दर्द शुरू हुआ, सो आई जस्ट वेंट आउटसाइड एंड आई ले डाउन ऑन द ग्रास। 2-4 यूनिट वाले आए हमारे पास, कहे साहब बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे करें पैकअप हो जाएगा। तो दे थॉट दैट आई एम हर्ड देम कि ब्रेक नहीं मिला है कई महीनों से, तो ये ब्रेक करने के लिए ये एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर, ये अब हमको ब्रेक मिल जाएगा तो हमको एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। बट ऑफ कोर्स दैट वाज अनदर स्टोरी, बट nobody knew what was going to become of that. मैंने अपनी तरफ से इनको शाम को हेडेक्स भेजा था जैसे कि हेडेक्स ने कुछ करना था इनको। क्लाइमैक्स का गाना होता है, जैसे मनमोहन देसाई की हर पिक्चर में गाना होना चाहिए, एक्सट्रावेगेंट सेट एंड दिस दैट। तो ये बने थे मैटाडोर विद हेमा जी and I was with Charlie Chaplin and Mr. Shatrughan Sinha was playing a Cossack dancer. Excuse me, Cossack dancer. Shatrughan Sinha was playing a dancer with Reena Roy being his Zarina or whatever. So पूरे गाने में सब लगे हुए थे, Amit ji, myself, we were all working very hard trying to perfect the steps what Kamal ji used to tell us in instructions of Manmohan Desai. And here was Shatrughan Sinha not bothered, sitting on the chair, not caring, not having, उनकी वजह से retake पे retake, and he couldn't care less. So then Manmohan ji got an idea and told his assistant to tell the junior artist supplier to see कि ऐसा कोई लंबा आदमी हो जो डांसर हो, अगर वो उसे लाया जाए तो बेटर है। तो खैर what happened was he was called to actually do a double of Shatrughan Sinha and do that Cossack dance to do it. Now हम सब लगे हमें अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं यार, we got to do best and this that, and यहाँ Shatrughan Sinha
कैमरे के पीछे बैठ के इन हिज ओन इनोवेटिव स्टाइल, शाबाश करो डांस, ये करो, एंड ही हैज अ डबल डूइंग हिज बॉडी डांस. And the tragedy of this is that when the song was completed, when we saw, he took away all the credit also of the bloody song. They all said कि यार शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या डांस किया यार. So this happens. But they were good times.